गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु को पढ़ें, सुने, व्यवहार में लाएं। आज का वचन हमें मिलता है भजन संहिता 37 उसका 20वां और 21वां पद। Psalm 37 verses 20 and 21। दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास की नाई नाश होंगे। वे धुएं की नाई बिलाए जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। Psalm 37, 20 and 21। But the wicked will perish. Though the Lord's enemies are like the flowers of the field, they will be consumed. They will go up in smoke. The wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously. Amen. आप देखें, God loves and cares those whom we love। आप देखें, हम पढ़ते हैं से बड़े 37 के 3-6 पद में। Psalm 37 verses 3 to 6। Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. आप देखें, परमेश्वर प्यार करता है। हम जो हमारे जीवन को उसके लिए सौंपते हैं, when we commit our life unto him, he leads us। आप देखें, लेकिन अगर आप उसके जो आपको लोग सताते हैं, परमेश्वर से बात करता है। हम देखते हैं साउल को, जब एक्स में जब जो है परमेश्वर जो है साउल से बात कर रहा है। Acts 9:4। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 4था पद। He means Paul or Saul fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Imagine, Saul is taking a letter from the priest, go to Damascus. Why he's going? He's going to catch those all who believe in Jesus' name, those who follow the ways of Christ, to catch them and put them into jail. He has authority. On that road, Paul had a vision. Saul had a vision. After he heard the voice, Saul, hey Saul, why do you persecute me? Why me? Who are you? And he शब्द इस्तेमाल करता है, और ये वो है ग्रीक वर्ड, वो है लॉर्ड। Who are you? That is conversion। इसमें जो है हम देखते हैं उस पर रिवेलेशन। रिवेलेशन, मैं प्रभु हूँ, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। My friend, remember when people persecute you, you know that they persecute Christ, they oppress Christ, and Lord will take revenge। आप देखें दुष्ट लोग कौन है, बार बार हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है, दुष्ट लोग कौन है? जो परमेश्वर को दूर चाहते हैं, उससे बात करते हैं। वे लोग जो हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है, those who don't follow the ways of God, many discourse। आप पढ़ते हैं रेवलेशन उसके 1:24 में। 1 Peter chapter 1 verse 24। All people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall. आप देखे जो इटाली थे, उन्हें मालूम था, क्योंकि वहाँ जो रेनी सीजन है वो छोटा है, फूल आते हैं और जो है शाम तक जो है सूख जाते हैं। आप देखें बात कुछ कहता है रेवलेशन उसके 14 चैप्टर 11 में। Revelation chapter 14 verse 11। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 11वां पद। And the smoke of their torment
will rise forever and ever. There will be no rest day or night for those who worship the beast and its image, or for anyone who receives the mark of its name. आप देखें जो यहूदी से उन्हें मालूम था वेदी का धुआं क्या होता है, क्योंकि वो जो उससे पूर्ण तरीके से they were well aware. आप देखें यहाँ जो बात कर रहा है पढ़े प्लीज रीड वर्स 21. Verse 21 of Psalm 37, and says, दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है. The wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously. आप देखिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट है, कंपैरिजन है, किसके बीच में? दुष्ट जन के बीच में और धर्मी के बीच में. दुष्ट लोग क्या करते हैं? उधार लेते हैं लेकिन देते नहीं है, लेकिन जो धर्मी है उधार से दान देता है, क्योंकि जेनरसली. मैंने आपको जानो, मैंने आपसे कहा था those who have grace they will deal with others graciously. इन्हें अनुग्रह की समझ है, दूसरों से अनुग्रह पूर्व व्यवहार करते हैं. जो धर्मी है वो उधार कर देता है, लेकिन जो दुष्ट है वो लेने के बाद देता नहीं है. आप देखें जो यहाँ जो बात की गई है, हम पढ़ते हैं ड्यूटोनॉमी उसके 15 अध्याय के 6 पद में. Deuteronomy 15 verse 6. व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय 6वां पद. For the Lord your God will bless you as he has promised, and you will lend to many nations, but will borrow from none. You will rule over many nations, but none will rule over you. आप पिछली बात को आगे 12वें पद में दोहराया गया है, 28 अध्याय के 12 पद में. Deuteronomy chapter 28 verse 12. The Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. आप देखिए जो इजराइल का इतिहास है वो क्या है, उन्होंने आज्ञा माने, परमेश्वर ने आशीष दी. मेरे टीचर थे डॉक्टर कृष्णाइट, वो कहते हैं लैंड इज द बैरोमीटर. जब जब इजराइल आज्ञा मान के वापस फिरे, परमेश्वर ने उनके लैंड में बचाया, उन्हें आशीष किया, लेकिन जैसे उन्होंने आज्ञा नहीं मान, परमेश्वर ने उखाड़ दिया, फेंक दिया. आप देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय की 11 पद में. 2 Corinthians chapter 9 verse 11. You will be enriched in every way, so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God. आप देखिए, you will be blessed in every way. अगर आप प्रभु के आगे मांगते हैं तो will be blessed. आज बात करते हैं लोग प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल की, उसका जो की है वो ये है आगे पालन. प्रभु के आगे मानिए, you claim it and name it and claim it. You will be blessed in every way. My friend, परमेश्वर आपको अपने आशीष देगा तो आप लोगों को भी पूरे भरपूर से देंगे. आज का हमारा जो टाइटल है वो है स्पिरिचुअल जनरोसिटी. आइए प्रभु की आज्ञा माने और भरपूरी के साथ लोगों को आप दें. तूने कहा, वचन कहता है जिन्हें मिला है औरों को दाब लगा के देते हैं, आपने प्रभु से पाया है औरों को दीजिए. प्रभु आपके साथ है. तो स्पिरिचुअल जनरोसिटी, आइए प्रार्थना करें, प्रभु से कहें तो आप हमें दें ताकि हम भी जो है औरों को दे सकें. मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के लिए धनवान हैं. वो धनवान तो बहुत हैं, लेकिन प्रभु के लिए धनवान होना धन्यवाद है. माय फ्रेंड आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, हु आर यू? आर यू रिच फॉर योरसेल्फ? आर यू रिच फॉर गॉड? आइए
उससे प्रार्थना करें। तो मेरी प्रार्थना है मेरे अपने लिए, मेरे परिवार के लिए, तो आप हमें आगे मानना सिखाएं, अपनी बातें बताएं, ताकि हम जो आपसे आशीष पाके वालों के लिए आशीष का कारण बने। तो हम पर दया करें, हमारी प्रार्थना सुन ले, यीशु के नाम से मांगते हैं। हम एक परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह और सहभागिता हमें से हर एक के साथ हमसे लेकर हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। तुम्हें बने रहिए, तो क्या मानिए और आशीष किए, तो आपके साथ हो।